میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں حافظ و قاری پیر طریقت رہبر شریعت جناب محمد فاروق رضا قادری صاحب سے کہ مائک تشریف لائیں اور اس شعر کے ساتھ کہ ان کی یادوں کا یہ فیض برابر ہو، ان کی یادوں کا یہ فیض برابر دیکھو، میں فقیری میں بھی ہوں کتنا تبنگر دیکھو۔ ہم زندہ ہیں اور زندوں سے بات کرتے ہیں، مردوں سے زندوں سے کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اور کرنے والے کرتے ہیں کہ اگر زندہ ہو تو قبر میں لیٹنے والے معین الدین اجمیری کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہی جواب دیتے ہیں کہ مردہ تم سمجھو گے کیونکہ تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم زندہ ہیں اور اجمیر والوں کو، بغداد والوں کو، کربلا والوں کو اور مدینے کے تاجدار کو زندہ سمجھا کرتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور وہ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ زندگی بخشنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اتنے سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سامعین بھی کافی سارے ہیں، لیکن محبت سے آپ سماعت کریں گے تو جو آیت میں نے آج پڑھی ہے اس کی ایک انوکھی بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور حقیقت میں تو قرآن ہے ہی لاجواب، کہیے سبحان اللہ۔ قرآن ہے ہی لاجواب، قرآن ہے ہی انوکھا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ زمین پہ آنے والی ہر کتاب اٹھا لی گئی اور جو دنیا داروں نے لکھی تھی وہ مٹا دی گئی، لیکن قرآن کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لہٰذا میں بات کر رہا تھا کہ ہم زندوں سے گفتگو کرتے ہیں، زندوں سے بات کرتے ہیں۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اجمیر کیوں جاتے ہو؟ بغداد شریف جانے والوں سے پوچھا بغداد کیوں چلے گئے؟ اجمیر شریف والوں سے پوچھا اجمیر شریف کیوں چلے گئے؟ مدینہ شریف جانے والوں سے پوچھا مدینہ شریف کیوں چلے گئے؟ تو جواب دیا گیا تم انہیں زندہ نہیں سمجھتے اس لیے نہیں جاتے، ہم انہیں زندہ کہا کرتے ہیں اور سمجھا کرتے ہیں، اس لیے ہم اجمیر بھی جاتے ہیں، بغداد بھی جاتے ہیں، کربلا بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے اگر زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جواب دیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم ان سب کو زندہ سمجھتے ہیں۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، ایک کعبے کا طواف کرنے والوں، کعبے کا چکر لگانے والوں اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو زندہ نہ سمجھنے والوں، غور کرو میرے غوث کو رب نے کیا طاقت اور قوت عطا کی ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور میں اپنی حیثیت بتا دوں، ماشاءاللہ علماء کرام کا جمع غفیر قافلہ ہے، بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ کرام تشریف فرما ہیں، میں سلطان ہوں، کہیے سبحان اللہ، سلطان ہوں میں، سلطان۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، مولانا اپنی خود ہی تعریف کر رہے ہیں، لیکن زمانہ یہی آ گیا ہے، کیا کریں؟ جب دوسرا بولے گا نہیں تو خود کو ہی بولنا پڑے گا، بات ہی ایسی آ گئی ہے۔ جب آپ نہیں کہیں گے تو ہمیں خود کو کہنا پڑے گا کہ ہم سلطان ہیں۔ میں اپنی حیثیت بتا رہا ہوں، لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں
फला मौलाना इतना ऊंचा हो गया, फला मौलाना ने मोटरसाइकिल खरीद ली, उसने कार खरीद ली, उसका बंगला आ गया, उसका मकान आ गया। तो क्या सुल्तान होने का हक आम आदमी को ही है? क्या कोई आलिम सुल्तान नहीं हो सकता? बोलिए, जरूर हो सकता है। क्या कोई मौलाना सुल्तान नहीं हो सकता? क्या कोई इमाम सुल्तान नहीं हो सकता? बल्कि ये ही सुल्तान है, बाकी सब अवाम है। जो इमाम है वो सुल्तान है, जो आलिम है वो सुल्तान है, और जो वली है वो इनके सुल्तान है, और जो नबी है वो कुल के सुल्तान है। लिहाजा मैं भी सुल्तान हूं, मैं अपनी हैसियत बता रहा हूं, न रईस हूं न अमीर हूं। हजरत आप तो इधर आइए, दाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ। सुभान अल्लाह, अरे भाई बोल दो हा, सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियतें जिन्होंने हिंदुस्तान में आज भी नातिया कलाम को जिंदा रख रखा है। सुभान अल्लाह। न रईस हूं न अमीर हूं। मुझसे मेरा पता पूछते हो, मैं कौन हूं? अपनी हकीकत बताता हूं, अपनी हैसियत बताता हूं। न रईस हूं न अमीर हूं, न बादशाह न वजीर हूं, तेरा इश्क मेरी सल्तनत। या गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, या हिंदल वली गरीब नवाज, या मदीने के ताजदार, न रईस हो न अमीर हो, न बादशाह न वजीर हो, तेरा इश्क मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत का फकीर हूं, इसी सल्तनत का फकीर हूं। ये सुल्तानी है हमारी, फकीर होने की सुल्तानी। और आपके दर का जो गुलाम होता है वो दुनिया का ताजदार हो जाया करता है, दुनिया का शहंशाह हो जाया करता है, दुनिया का बादशाह हो जाया करता है। कई जगह बयानात में ऐसा भी मौका आता है जहां मुश्तरिका लोग होते हैं। मुश्तरिका लोग यानी कि सब कम्युनिटी के लोग, सभी मौका आता है। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हमारा फख्र है। हम इस बात पर फख्र करते हैं कि ऐसी जगह हम रहते हैं जहां सब कम्युनिटी है, और उन सब कम्युनिटी में हम नबी आखिरुज़्ज़मा के कलमा पढ़ने वाले भी रहा करते हैं। तो जहां सब कम्युनिटी के लोग होते हैं वहां ऐसा मौका होता है, लेकिन वो लोग ज्यादा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज में कहते हैं। उनको शौक होता है, जज्बा होता है। और मोमिन, ईमान वाला मुसलमान, वो ये समझता है हमने तो एक बार पढ़ ही रखा है, हमें दोबारा कलमा पढ़ने की कहां जरूरत है, सुभान अल्लाह कहने की कहां जरूरत है। अरे नादानो, जरूरत तुम्हें ही है। जिनका कबूल नहीं होता उन्हें पढ़ने से फायदा ना होगा, तुम्हारा कबूल हो रहा है, और सुभान अल्लाह कहने से बहुत फायदा होगा। जो आयत मैंने तिलावत की ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 11 है और सूरत नंबर 10 है। गौसे पाक की ये महफिल हिफ्ज़ो क़िरात की निस्बत से सजाई गई है। और गौसे पाक पर चंद जुमले आप समाअत कर लें, चंद बातें समाअत कर लें, फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ सबसे पहले आया अला, जिसका माना होता है खबरदार, सुन लो और आगाह करने के लिए भी कहा जाता है। आगे आया इन्ना, बेशक, यानी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। औलिया, लफ्ज़ वली की जमा औलिया, यानी एक की बात नहीं की जा रही, जितने भी वली हैं सबकी बात की जा रही है। औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली, ला खौफुन, उन पर कुछ खौफ नहीं, और आम ज़बान में उनको कोई खौफ नहीं, और ना कुछ गम, ना खौफ है ना गम। अब यही हम समझ लेते हैं कि अल्लाह के वलियों को ना कुछ खौफ है ना कुछ गम है, इतनी सी बात है। और इस बात में बड़ी कीमती बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग यूँ समझते हैं
کہ जो कब्रों के अंदर आराम फरमा अल्लाह के वली हैं, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने ऐसा ना फरमाया, बल्कि वलियों का जिक्र फरमाया। अब अगर वो वली कब्र में लेटा है तो भी फैज दे रहा है, और मसनद पर बैठा है तो भी फैज दे रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वली अगर बाहयात है तो भी उसका फैज जारी है, और कब्र में आराम फरमा है तो भी फैज जारी है। वली का माना होता है दोस्त, मददगार, हमदर्द, हिमायत करने वाला, मदद करने वाला, वक्त पर काम आ जाने वाला। अल्लाह ताला ने वली कहा, अपना वली बताया और सारे वलियों की बात की। लिहाजा ये जो वली है, ये जो अल्लाह के औलिया है, ये मददगार है, ये कोई दुनिया का इंसान नहीं कहता, बल्कि खाली के इंसान फरमा रहा है। वलियों की बात हो रही है, और लोग वलियों को सिर्फ कब्रों में, मज़ारों में तलाश करते हैं। यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं कि वलियों को सिर्फ कब्रों में और मज़ारों में तलाश ना करो, बल्कि जमीन के ऊपर भी तलाश करो। हो सकता है कोई वली आपको मिल जाए, आपको दीदार हो जाए, आपको ज़ियारत हो जाए, आपकी मुलाकात हो जाए। तो अगर किसी वली से मुलाकात हो गई, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपकी बंदगी को बदलने के लिए, आपके हालात बदलने के लिए, आपके तखय्युलात बदलने के लिए, आपके तसव्वुरात बदलने के लिए, वो एक वली काफी हो जाएगा और जन्नत में आपको लेकर चला जाएगा। बुज़दिली खत्म करो। यही तो वजह है दुनिया में मुसलमानों के हालात। जब आवाजें जबान से नहीं निकल रही हैं, कल्ब कैसे पाक होगा? आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि कम अज कम आसपास जो फरिश्ते हैं वो तो सुन ले कि हाँ, अल्लाह का बंदा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, और वो पैगाम अपने रब तक पहुंचा दे। ए परवरदिगारे आलम, तेरे बंदे महफिल में बैठकर तेरा जिक्र और पाकी बयान कर रहे थे, हमने अपने कानों से सुना है, और वो सदा सुनकर जब फरिश्ते पहुंचाए, रब राजी हो जाए। ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, जो मेरे महबूबों की महफिल में बैठकर मेरा जिक्र करते हैं, मैंने उन्हें माफ कर दिया है। लिहाजा ये जो वली हैं, उनको सिर्फ कब्रों में तलाश ना करो, जमीन पर भी तलाश करो। और जिस वली का जिक्र मैं कर रहा हूँ, गौसे आजम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, पीर लासानी, खुतब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी इतने पाए के बुजुर्ग हैं। आपका सिलसिला आबा व अजदाद की जानिब से, वालिदे गिरामी की जानिब से और वालिदा की जानिब से, दोनों तरफ से जो पहुंचता है, तो हसन और हुसैन की बारगाह में पहुंचता है। एक जानिब से आप हसनी सैयद हैं और दूसरी जानिब से हुसैनी सैयद हैं। और हम इमाम चौक में बैठे हुए हैं, ये इमाम चौक है, मौला हुसैन का नाम आता है, मौला हुसैन का जिक्र आता है, मौला हुसैन की बात आती है, क्योंकि 10 मुहर्रम को हजरत मौला हुसैन ने अहलो अकारिब के साथ करबला में अपनी शहादतें पेश की हैं, शहीद हुए हैं करबला के मैदान में। और ये सूरत जो है, सूरह यूनुस कुरान अजीम की 10वीं सूरत है, और 10 मुहर्रम को शहादत हुई है। लिहाजा इस सूरत का ताल्लुक 10 के अदद से मौला हुसैन से ताल्लुक रखता है। किससे ताल्लुक रखता है? मौला हुसैन से ताल्लुक रखता है। और पारा नंबर 11 है, जो आयत मैंने तिलावत की है, ये 11वें पारे के अंदर है। लिहाजा ये 11वां पारा गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी से ताल्लुक रखता है। और आयत नंबर 63 इसमें जो आई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए कहा, वो ईमान वाले जो परहेजगार रहे। ये आयत नंबर 63 है, यानी कि अल्लाह ताला
कुरान अजीम में बता रहा है कि अगर तुम वाकई में अल्लाह के वली को तलाश करना चाहते हो, अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, वकानो यत्तकून, और परहेजगार रहे। दो चीजें बताई जा रही हैं। पहली चीज बताई जा रही है ईमान लाने की। ईमान वाले तो हम हैं ही सही, मुसलमान तो हम हैं ही सही, ईमान तो हम ले आए, ईमान तो हमारा है ही सही, लिहाजा ईमान की बात तो पूरी हो गई। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और वो जो परहेजगारी करें, जिनके अंदर इत्तिका है, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जिनके अंदर खुदा का डर है, वही लोग अल्लाह के वली हैं। लिहाजा अल्लाह के वलियों को तलाश करना है तो उन बंदों को ढूंढ लो जिनके दिलों में रब का खौफ है, वो अल्लाह के वली तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। और अगर हिंदुस्तान में उसको ढूंढना है तो उसे हिंदल वली गरीब नवाज कहा जाता है, और अगर करबला में ढूंढना है, बगदाद में ढूंढना है तो उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है, उसे मौला हुसैन कहा जाता है। ये सैयदुश्शुहदा, ये औलिया, ये वो अल्लाह के खास बंदे हैं जो तुम्हारे कल्ब को भी पाक कर देंगे, ज़हन को भी पाक कर देंगे, दिल को भी पाक कर देंगे, ईमान को भी पाक कर देंगे, और तुम्हें जन्नती बनाते चले जाएंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।